اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 17 مارچ کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 100 سے زائد ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق یہ بھی واضح نہیں کہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنائی زندہ ہیں یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی اور جلد ختم ہو جائے گی۔ Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran. تنازع کے آغاز سے لے کر اب تک ہم ایران بھر میں 7,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر تجارتی اور فوجی تنصیبات شامل ہیں۔ ہم نے ان کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی اور ڈرون حملوں میں 95% کمی حاصل کر لی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف کے ساتھ کوئی نیا رابطہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں زمینی کارروائی شروع کرنے کے اعلان کے بعد یورپی رہنماؤں نے اسرائیل اور حزب اللہ سے پائیدار سیاسی حل کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ عراق پر حملے آج منگل کے روز بھی جاری رہے۔ Iraq is being dragged into the US-Iran war that has engulfed the region. As the war enters its third week, the situation is growing ever more desperate for Iraq. کابل میں مبینہ پاکستانی فضائی حملے پر افغان طالبان نے ہسپتال میں بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتوں کا الزام عائد کیا ہے، جس کی اسلام آباد نے تردید کی ہے۔ جانیے دوحہ کی مشہور سوق واقف مارکیٹ ایک بار پھر آباد اور مصروف کیوں دکھائی دینے لگی ہے۔ یہ سوق واقف ہے جو دوحہ کی سب سے مشہور مارکیٹ ہے۔ جب ہم جنگ کے آغاز میں یہاں آئے تھے تو یہ تقریباً خالی تھی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں۔ حملوں کا ابتدائی خوف اب ختم ہو چکا ہے۔ ایک طرح سے یہاں حالات کے معمول پر آنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھی جانیے کہ ایک پاکستانی آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے طویل راستہ کیوں اختیار کیا۔ جانیے انڈیا کی انوکھی ایک کھمبا مسجد 125 سال سے ایک ستون پر کیسے کھڑی ہے۔ اس میں پرانے لوگوں نے اسے ایک پلر ایسے بنایا ہے جو آرچیز اور ایک کنیکٹ کالم کر کے اس پہ لوڈ کو ریسٹ کیا گیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں صدیوں پرانا سنگ تراشی کا کام مشکلات کا شکار کیوں؟ بین ہونے کے بعد ہم ڈپریشن کے شکار ہو گئے، ہم مریض بن گئے، ہم بینک ڈیفالٹر بن گئے، اور پرکشش دکھائی دینے کے لیے چہرے پر ہتھوڑوں سے ضربے لگانے اور بھیڑیے جیسی آنکھیں بنانے کا رجحان۔ جانیے لکس میکسنگ کی انوکھی دنیا کیا ہے۔ We're not saying go past your genetic limits and go into extreme measures, but try to optimize your lifestyle around your appearance. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران مختصراً ایران میں جاری جنگ کے حوالے سے بات کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں اب تک 7,000 اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے اور 100 سے زیادہ بحری جہازوں کو بھی تباہ کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو عملی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، ان کی فضائیہ، بحریہ اور رہنما ختم ہو چکے ہیں اور ان کی اینٹی ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی بھی بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل وہ کر رہے ہیں جو برسوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے پیر کو ایسی 3 تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جہاں میزائل اور ڈرون بنائے جا رہے تھے۔ Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran. تنازع کے آغاز سے لے کر اب تک ہم ایران بھر میں 7,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر تجارتی اور فوجی تنصیبات شامل ہیں۔ ہم نے ان کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی اور ڈرون حملوں میں 95% کمی حاصل کر لی ہے۔ اب میزائل بہت کم تعداد میں آ رہے ہیں
کیونکہ ان کے پاس زیادہ میزائل باقی نہیں بچے۔ جیسا کہ اب جانتے ہیں، ہم نے خاک جزیرے پر حملہ کیا اور اسے تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا، سوائے اس حصے کے جہاں تیل ہے، جسے میں پائپس کہتا ہوں۔ ہم نے پائپس کو چھوڑ دیا۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو 5 منٹ کے نوٹس پر اسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہم ابنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرہ پہنچانے کی ان کی صلاحیت کو بھی شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، جہاں ہم نے 30 سے زیادہ بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ہم نے ان کے تمام ایسے جہازوں کو نشانہ بنا لیا ہے۔ اب وہ دوسرے قسم کے جہازوں سے بھی بارودی سرنگیں گرا سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بڑا منفی قدم ہوگا، یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو خطرے میں ڈالنے کی ایرانی صلاحیت کو بری طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق انہیں نہیں معلوم کہ ایران نے سمندر میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یا نہیں، لیکن امریکہ نے اس کام پر مامور ایران کے 30 جہازوں کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایران کو ٹھکانے لگا چکے ہیں اور دیگر ممالک کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے مدد فراہم کریں۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ متعدد ممالک ان کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں، تاہم امریکی صدر نے ان ممالک کا نام لینے سے اجتناب کیا اور کہا، میں ان کے نام لینا چاہوں گا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا چاہیں گے یا نہیں، کیونکہ شاید وہ اس جنگ میں نشانہ نہیں بننا چاہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے سے 1000 میل کے فاصلے پر موجود ہر ملک پر میزائل داغ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہزاروں میزائل ان ممالک پر داغ رہا ہے جو اس جنگ میں شامل ہونے کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی تمام قیادت ختم ہو چکی ہے اور انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ وہ اس وقت کس سے معاملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ کسی نے ان لوگوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا، وہ سب مر چکے ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی زندہ ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایران کے خلاف جاری جنگ اس ہفتے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا گیا ہے، ٹرمپ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا جنگ واقعی اس ہفتے ختم ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا، لیکن جلد ہی ختم ہو جائے گی، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ سب کرنا ان پر فرض تھا اور جنگ کے بعد دنیا زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے B-2 بمبار طیارے کا ماڈل اٹھایا اور کہا کہ اگر انہوں نے گزشتہ برس ایران کی جوہری تنصیبات پر فضائی حملے کا حکم نہ دیا ہوتا تو تہران کے پاس اب تک جوہری ہتھیار موجود ہوتے۔ ان حملوں میں B-2 بمبار طیارے استعمال کیے گئے تھے جنہیں امریکہ نے مڈ نائٹ ہیمر کا کوڈ نام دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو ایک ایٹمی جنگ، تیسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی۔ We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. So we want them to come and help us with the Strait. We have it in very good shape. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس اب صرف تقریباً 8% میزائل اور چند حملہ آور ڈرون باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ممالک نے انہیں شدید مایوس کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایران کے خلاف امریکی جنگ میں تعاون نہیں کیا۔ ٹرمپ نے خاص طور پر نیٹو ممالک کا ذکر کیا اور بتایا کہ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بات کی تھی، جو پہلے ہچکچائے لیکن بعد میں کچھ مدد کی پیشکش کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کی ضرورت نہیں جب ہم پہلے ہی جنگ جیت چکے ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے کہا کہ کچھ ممالک امریکہ کے منصوبے میں مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جا سکے، کیونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے ان ممالک کی نشاندہی نہیں کی لیکن کہا کہ جنوبی کوریا، جاپان اور چین جیسے ممالک کو بھی امریکہ کی مدد کرنی چاہیے۔
It's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. सदर ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने ईरानी अस्करी कुव्वत को खत्म कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब वो नेटो के इत्तेहादियों और दीगर ममालिक से कह रहे हैं कि वो अपने बहरी जहाज भेजें और आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी को खुला रखने में मदद करें। सवाल ये है कि वो ये क्यों चाहते हैं कि ये ममालिक इस कोशिश में शामिल हों। ये सवाल रखा हमने ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मलिक इफ्तिखार के सामने। सदर ट्रंप एक कैच-22 सिचुएशन में है, ना वो लड़ाई छोड़ सकते हैं, ना ही वो ये कह सकते हैं कि इस लड़ाई को अनलिमिटेड टाइम के लिए जारी रखा जाए, क्योंकि उनका अपना पेशेंस भी लिमिटेड है और फिर वर्ल्ड ओपिनियन, अमेरिकन ओपिनियन जो है वो इस जंग के खिलाफ हो रही है और ईरान ने काफ़ी हद तक अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। तो वो समझते हैं कि अपने एलाइज पे जिम्मेदारी डाल के एक तो मिलिटरीली अमेरिका का जो ऑपरेशन है उसको मदद मिलेगी और दूसरा ये है कि और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के आने की वजह से ईरान पे प्रेशर होगा। ये उनकी एक पॉलिटिक्स ऑफ नर्व्स भी चल रही है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, लेकिन लगता यही है कि सदर ट्रंप जो हैं वो एक अपने आप को गहरी और कम्प्लेक्स सिचुएशन में पा रहे हैं और वो बाहर निकलने के लिए अपने हवारियों को, अपने एलाइज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। लेकिन सर, आपने डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल सूरत हाल का जिक्र तो किया, मगर उन्होंने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात और जंग बंदी चाहता है। ताहम ईरान ने इस दावे को मुस्तरद किया है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई बात होगी तो उन्हें ये जमानत चाहिए कि आइंदा उन पर हमला नहीं होगा। ईरान आखिर किस बलबूते पर ये बात कर रहा है? दोनों तरफ ट्रस्ट डिफिसिट है और ये पिछले कई दहाइयों से चल रहा है। तो और जो नेगोशिएशंस हो रहे थे और फिर अचानक इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, तो थोड़ा वो जो ट्रस्ट था पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे वो ख़त्म हो गया है। और ईरान की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में इसमें पॉजिटिव सूरत हाल ये है कि अगर वो इस लड़ाई को मज़ीद सस्टेन करें तो ट्रंप पे अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। तो ईरानियंस जो हैं वो टाइम ले रहे हैं और वो समझते हैं कि काफ़ी हद तक वो ड्रोन वॉरफेयर से और गल्फ़ की पॉलिटिक्स से प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज़ जो हैं ख़ास तौर पे गल्फ़ रीजन में वो काफ़ी हद तक मफलूज हो गई हैं। हालांकि ईरानी सिलेक्टिव पैसेज दे रहे हैं गल्फ़ से, लेकिन मेरे ख्याल में वो बाकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एलाइज हैं वो समझते हैं कि अगर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलिटरीली अलायंस किया तो वो इससे अफेक्ट होंगे। तो एक सिलेक्टिव किस्म की जो रिलेशनशिप है ईरान की बाकी कंट्रीज़ के साथ जारी है, लेकिन मेनली जैसे मैंने कहा कि ये वॉर ऑफ नर्व्स है और दोनों तरफ से एक दूसरे को असाबी तरीके से नीचे लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे जो वर्ल्ड इकानमी मजरू हो रही है और साथ ही साथ हिसाब जो है वो अपना वो जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में काफ़ी डिसाइसिव किस्म की स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। ऑक्सफोर्ड से प्रोफेसर मलिक इफ्तिखार, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कॉट्स ने दावा किया है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को फिजाई हमले में हलाक कर दिया गया है। इसराइली फौज का कहना है कि उन पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ एक खुफिया अपार्टमेंट में छुपे हुए थे। इसराइली वजीर दिफा का यह भी कहना था कि उन्होंने और वजीर आजम ने फौज को हिदायत दी है कि ईरान की क़यादत का ताक़ुब जारी रखा जाए। The chief of staff have just informed me is that the head of the National Security Council, Ali Larijani, and the leader of the Basij forces, both were killed, were assassinated today, and joined the head of the regime in hell. याद रहे कि अली लारिजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में योम अल कुद्स की रैली के दौरान देखा गया था। इसराइल की जानिब से ईरानी रहनुमा अली लारिजानी की हलाकत के दावे के बाद अब ईरानी मीडिया और अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हाथ से लिखा हुआ एक पैगाम ज़ेरे गर्दिश है। अली लारिजानी के टेलीग्राम और एक्स अकाउंट पर शाया होने वाले इस तस्वीरी पैगाम में वक्त और तारीख दर्ज नहीं, ताहम ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि ये आज का है। इस पैगाम में ईरान की बहरिया के जंगजुओं को खराज तहसीन पेश किया गया है। याद रहे कि इस माह के अवाइल में जंगी जहाज IRIS दीना पर हलाक होने वालों की तदफीन की तकरीब आज मुनक्कद की जा रही है।
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں سرکاری طور پر 4 مارچ کو امریکی آبدوز کے تارپیڈو حملے میں ہلاک ہونے والے 84 ملاحوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یہ ملاح ان 130 افراد میں شامل تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایرانی جنگی جہاز IRIS دینا پر سوار تھے۔ IRIS دینا انڈیا کی میزبانی میں ہونے والی ایک فوجی مشق سے واپس آ رہا تھا جب اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں کے داغے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر مزید میزائل فائر کیے گئے ہیں اور اسرائیل کے دفاعی نظام انہیں روکنے کے لیے متحرک ہیں۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ایران سے مقبوضہ علاقوں کی جانب میزائلوں کی ایک نئی لہر داغی گئی ہے۔ مشرق وسطی میں آج دن بھر کیا ہوتا رہا؟ تازہ ترین تفصیلات جانیے عمر دراز ننگیانہ اور نیر عباس سے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں عمر دراز ننگیانہ۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے گزشتہ رات ایران میں کارروائی کی جس میں علی لاریجانی قتل کر دیے گئے، جبکہ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ وہ علی لاریجانی کا بیان سامنے لائیں گے۔ دوسری جانب عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کو ایک مرتبہ پھر ڈرونز اور راکٹس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ بغداد کے اندر گرین زون میں جہاں پر امریکی سفارت خانہ اور دیگر اہم عمارتیں موجود ہیں وہاں پر ایک ہوٹل میں ڈرون لگنے سے آگ لگ گئی ہے۔ ایران کی طرف سے متحدہ عرب امارات پر متعدد حملے کیے گئے ہیں۔ ایک حالیہ حملے کے اندر میزائل فضا میں تباہ ہونے کے بعد ملبہ گرنے سے ابو ظبی میں ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ مرنے والے کا تعلق پاکستان سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کا آغاز ہونے سے اب تک انہوں نے تقریباً 1900 کے قریب میزائلز اور ڈرون تباہ کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 7 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اندر فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ لبنانی حکام نے بتایا ہے کہ منگل کی صبح اسرائیل نے بیروت کے اندر کم از کم 3 مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے بتایا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بیروت کے اندر مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ سامعین، 2 ہفتوں سے یہ تنازع جاری ہے اور اب تک اس کے خاتمے کے کوئی واضح آثار نظر نہیں آ رہے۔ ان 2 ہفتوں میں کیا کچھ ہوا، جانتے ہیں غضنفر حیدر سے۔ 2 ہفتوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس جنگ کے خاتمے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سوال اب بھی برقرار ہے کہ یہ تنازع کب تک جاری رہے گا اور اس کے اثرات کتنی دور تک جائیں گے۔ واشنگٹن واپس جاتے ہوئے جہاز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے اب دیگر ممالک سے مدد مانگی ہے تاکہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی دوبارہ بحال کی جا سکے۔ ہم ہمیشہ نیٹو کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ہم یوکرین کے معاملے میں بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ایسا کون سا ملک ہے جو آبنائے ہرمز کو کھلے رکھنے کے چھوٹے سے کام میں بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے بھی گزشتہ رات صدر ٹرمپ سے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات کی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق اس رابطے میں عالمی جہاز رانی کو درپیش رکاوٹوں کے خاتمے پر گفتگو ہوئی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے کئی جہازوں پر حملوں کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں، جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران نے سمندر کی گہرائی میں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی ہیں۔ ادھر اس ہفتے کے آخر میں بھی مشرق وسطی میں حملوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ متعدد حملوں میں ایران کی خلائی ایجنسی کے مرکزی تحقیقی مرکز میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دوسری جانب اسرائیل میں رات کا آسمان ایک بار پھر راکٹوں سے روشن ہو گیا، جبکہ فضا میں پھٹنے والے میزائلوں کے ٹکڑے زمین پر گرتے رہے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، تاہم تہران نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ بقا کی جنگ نہیں ہے، ہم کافی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ہم صرف اپنے عوام کو اس جارحیت سے بچانے کے لیے دفاع کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم امریکہ سے بات کیوں کریں، کیونکہ جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر اس وقت پروازیں عارضی طور پر معطل کرنا پڑیں جب ایک ڈرون حملے کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ برطانیہ نے لبنان میں انسانی امداد کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق مارچ سے اب تک کم از کم 850 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس جنگ کی زد میں آنے والے بے شمار لوگوں کے لیے ابھی تک اس بحران کے خاتمے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔
ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने अमरीकी मीडिया की उन रिपोर्ट्स की तरदीद की है जिनमें कहा गया था कि वाशिंगटन ने सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के जरिए तेहरान से दोबारा राब्ता कायम किया है। अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मेरा स्टीव विटकॉफ से आखिरी राब्ता उस वक्त हुआ था जब उनके मालिक यानी ट्रंप ने ईरान पर एक और गैर कानूनी फौजी हमले के जरिए सिफारतकारी को खत्म करने का फैसला किया था। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बरक्स कोई भी दावा सिर्फ तेल के ताजरों और आवाम को गुमराह करने के लिए नजर आता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के रहनुमाओं ने लेबनान में जारी लड़ाई के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए इसराइल और लेबनान पर जोर दिया है कि वो एक पायदार सियासी हल के लिए बातचीत शुरू करें। एक मुश्तरका बयान में इन ममालिक ने लेबनान की हिजबुल्लाह से गैर मुसल्लह होने और इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा किया है। हिजबुल्लाह की जानिब से ईरान की जंग में शामिल होने के फैसले की भी मजम्मत की गई है। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले के तबाहकुन इंसानी नताइज होंगे और ये एक तवील तनाज़े का बाइस बन सकता है। इसे रोकना जरूरी है। ये बयान बैरूत में रात भर इसराइली फिजाई हमलों की इतलात के बाद सामने आया है। लेबनान की कौमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इन हमलों का निशाना शहर के जनूबी इलाके बने हैं। इराक भी इस हफ्ते मुतअद्दिद हमलों की जद में रहा है और मंगल के रोज भी हमलों का यह सिलसिला जारी है। पीर के रोज बगदाद के सख्त सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में ड्रोन हमले के बाद यहां वाक़े एक लग्जरी होटल में आग भड़क उठी। ये वो इलाका है जहां सरकारी इमारतें और गैर मुल्की सिफारत खाने मौजूद हैं। मंगल की सुबह ग्रीन जोन में वाक़े अमरीकी सफारत खाना भी निशाना बना। खबर इदारे AFP को एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि सफारत खाने पर 3 ड्रोन और 4 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कम अज कम एक सफारत खाने के अंदर जा गिरा। एक यानी शाहिद ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने कम अज कम 3 ड्रोन अमरीकी सफारत खाने की जानिब जाते देखे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 2 ड्रोन मार गिराए गए जबकि तीसरा सफारत खाने के अहाते के अंदर जा टकराया। इराकी सिक्योरिटी ज़राए ने AFP को बताया कि ये हमलों के आगाज से अब तक का सबसे शदीद हमला था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के फिजाई हमलों के बाद सैकड़ों अफराद के हलाक या जख्मी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का दावा है कि यह हमला मनशियात के आदी अफराद का इलाज करने वाले मरकज पर किया गया, जबकि पाकिस्तान ने इसकी तरदीद करते हुए दावा किया कि फिजाई हमले में काबुल और मशरकी अफगान सूबे नंगरहार में फौजी तनसीबात और दहशतगर्दों के मराकज को निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जमान ने एक्स पर लिखा कि अस्पताल को पीर के रोज निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कुछ अफराद हलाक और कुछ जख्मी हुए हैं। BBC पश्तो सर्विस ने इस अस्पताल का दौरा किया, जहां इमारत के कुछ हिस्से अब भी जल रहे थे और स्ट्रेचर पर 30 से ज्यादा लाशें लाई जा रही थी। अस्पताल के हुकाम के मुताबिक वहां तकरीबन 2000 अफराद जेरे इलाज थे। अफगान तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि हलाकतों की तादाद 400 जबकि 250 अफराद जख्मी हुए हैं। BBC इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका। अफगान वजारत सेहत के तर्जुमान शराफत जमान अमर खेल ने BBC को बताया कि अस्पताल के करीब किसी किस्म की अस्करी तनसीबात नहीं है। रिहायशियों ने मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8:50 पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनने की इतला दी, जिसके बाद तैयारों की आवाजें भी सुनाई दी। जेर इलाज अफराद के अहले खाना अस्पताल के बाहर जमा थे और मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्ला मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा कि ये वो आम शहरी और मुनशियात के आदी अफराद थे जिनकी अक्सरियत पाकिस्तानी फिजाई हमले में हलाक हुई है। दूसरी जानिब राशिद खान समेत अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इस हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलाआत अता तारड़ का दावा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से काबुल और नंगरहार में अस्करी तनसीबात और दहशतगर्दी के उन मराकज को निशाना बनाया गया जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में उनका कहना था, काबुल में 2 मुकामात पर तकनीकी मामलत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और असला जखीरा करने के मराकज को तबाह किया गया है। हमलों के बाद होने वाले धमाके भी यही जाहिर करते हैं कि वहां गोला बारूद जखीरा किया गया था।
अताउल्ला तार ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नंगरहार में भी अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्दी के 4 मराकज़ को निशाना बनाया और वहां मौजूद असला और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात का यह भी कहना है कि तमाम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ सिर्फ उन तनसीबात तक महदूद रखा गया जिन्हें अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के अस्करी ज़राए की जानिब से कहा गया है कि वीडियो में फ़िज़ाई हमले के बाद एक दूसरे धमाके की वजह से उठने वाले शोलों से जाहिर होता है कि ये एक असला डिपो था। याद रहे कि इतवार के रोज बाजोड़ में अफगानिस्तान के मुबैना हमले में ईद के लिए घर आने वाले 4 भाई मोटर गोले से हलाक हो गए थे। कराची और रावलपिंडी में बतौर मजदूर काम करने वाले 4 भाई मुआज, अयास, रियाज और साजिद ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाके बाजोड़ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी जंग का शिकार हो जाएंगे। ये चारों भाई इतवार को मुबैना तौर पर जिला बाजोड़ के इलाका लटेई में अफगानिस्तान की तरफ से फायर किए गए मार्टर गोले की जद में आकर हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तार ने भी इन 4 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है और अपने एक बयान में इल्ज़ाम आयद किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पाकिस्तान में आम शहरियों को निशाना बना रही है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बाजोड़ में होने वाले हमले में 4 मासूम शहरी शहीद और एक 5 साला बच्चा जख्मी हुआ है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े की शुरुआत गुज़िश्ता महीने हुई थी और इसके बाद से फरीकैन एक दूसरे का भारी नुकसानात करने के दावे करते आए हैं। ये वो जगह है जहां गुज़श्ता रात पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई हमला किया गया। ये इमारत मंशियात से आदी अफराद के इलाज का मरकज़ है। आप ये तबाही देख सकते हैं। आग ताहाल जारी है, इमारत से धुआं उठ रहा है। 8:50 at night, कल रात 8:50 के करीब काबुल में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई। इसके बाद जहाज़ों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। फिर एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से फायरिंग की आवाज़ें भी आईं। from the security forces here. यहाँ कोई इंतजामी दफ्तर नहीं था, ये हस्पताल था और हस्पताल का इंतजामी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता ये हस्पताल टारगेट किया गया है। हमारी इमदादी टीमें काम कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मलबे के नीचे दबे अफराद को निकाला जा सके। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद सैकड़ों तक पहुंच सकती है। तहम अभी तक हलाकतों की कोई हतमी तादाद नहीं बताई जा सकी। हमने ज़ेर इलाज अफराद की फैमिलीज को देखा जो बाहर खड़े रो रहे थे। वो जानना चाहते हैं कि इनके घर वालों के साथ क्या हुआ। हमने एम्बुलेंसेज में जख्मियों और लाशों को भी ले जाते हुए देखा। यहाँ शदीद तबाही के मनाजिर हैं और हलाकतों के बारे में मजीद तफसीलात आना बाकी हैं। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ का दावा है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से काबुल और नंगरहार में अस्करी तनसीबात और दहशतगर्दी के उन मराकज़ को निशाना बनाया गया जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में उनका कहना है कि काबुल में 2 मकामात पर तकनीकी मुआवनत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा ज़ख़ीरा करने के मराकज़ को तबाह किया गया। हमलों के बाद होने वाले धमाके भी यही जाहिर करते हैं कि वहाँ गोला बारूद ज़ख़ीरा किया गया था। अताउल्ला तारड़ ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नंगरहार में भी अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्दी के 4 मराकज़ को निशाना बनाया और वहाँ मौजूद असलहा और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि तमाम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ सिर्फ उन तनसीबात तक महदूद रखा गया है जिन्हें अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के अस्करी ज़राए की जानिब से कहा गया है कि वीडियो में फ़िज़ाई हमले के बाद एक दूसरे धमाके की वजह से उठने वाले शोलों से जाहिर होता है कि ये एक असलहा डिपो था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी ने गुज़िश्ता माह दोबारा शिद्दत इख्तियार की। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर शिद्दत पसंद ग्रोहों को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद करता है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज में दोहा की मशहूर सोक वाकिफ मार्केट तकरीबन खाली हो गई थी।
खिते के लोग ईरान के मुमकिन जवाबी हमलों से शदीद हैरत और खौफ का शिकार थे। अब तक खलीजी ममालिक में कम अज कम 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम कतर में मौजूद अमरीकी फिजाई अड्डे निशाने पर थे, लेकिन दिफाई निज़ाम ने इन हमलों को नाकाम बना दिया और मुल्क में किसी हलाकत की इतला नहीं मिली। अब जबकि ये जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और ईद भी करीब आ रही है, तो दोहा की यही मशहूर मार्केट दोबारा से आबाद और मसरूफ नजर आने लगी है। सूख वाकिफ है जो दोहा की सबसे मशहूर मार्केट है। जब हम जंग के आगाज में यहाँ आए थे तो ये तकरीबन खाली थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद हैं। हमलों का इब्तदाई खौफ अब खत्म हो चुका है। एक तरह से यहाँ हालात के मामूल पर आने का एहसास होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग नजर आते हैं। कतरी तो जाहिर है ही, साथ ही कतर में फंसे हुए मुसाफिर और गैर मुल्की भी हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जब हमने शुरू में बड़े धमाकों और इस तरह की आवाजें सुनी तो पहले तो थोड़ा डर लगा। सब कुछ एक हकीकत बन गया, लेकिन फिर जल्द ही एक मामूल की चीज भी बन गई। अब हमने इस सूरत हाल में एडजस्ट कर लिया है। हमें ये आवाजें सुनने की आदत नहीं है, लेकिन हम हमेशा पुरसकून रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम घबराए तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। सूरत हाल बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम महफूज हैं, क्योंकि हमारा दिफा बहुत मजबूत है। तकरीबन हर रोज सायरन बजते हैं और फिर इसके कुछ देर बाद आपको एक बड़ा धमाका सुनाई देता है और फिर आपको फोन पर मैसेज आता है कि हमने इस मिसाइल को बीच हवा में ही रोक लिया है। यहाँ मुस्तकबिल के हवाले से तशवीश पाई जाती है, लेकिन इस वक्त कतर के रिहायशी महफूज महसूस कर रहे हैं। सामीन, हमने कई जहाज़ों को ट्रैक किया है जो आज आबनाए हुर्मुज से गुजरते दिखाई दिए हैं। इनमें से एक पाकिस्तान के झंडे वाला जहाज कराची है जो खाम तेल लेकर जा रहा है और ये सरकारी इदारे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की मलकियत है। मैरीन ट्रैफिक के ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ये जहाज ईरान के खसूसी इक्तसादी जोन EEZ में दाखिल हुआ, कशम और लार्क जज़ायर के दरमियान से गुजरा और जनूबी सिमत में जाते हुए ईरानी साहिल के करीब से गुजरा। हमने साबिक अमरीकी बहरिया के कप्तान ब्रैडली मॉर्टन से पूछा कि जहाज ने इतना तवील और गैर मामूली रास्ता क्यों इख्तियार किया। ब्रैडली, जो अब अमरीकी दिफाई थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में सीनियर मुहक्किक हैं, कहते हैं कि ये इस बात की निशानदही कर सकता है कि जहाज ईरान की जानिब से गुजरगाह के हवाले से दिए गए किसी हिदायतनामे पर अमल कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि इस रास्ते का मतलब ये भी हो सकता है कि इलाके में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं, या ईरान ने यह रास्ता इसलिए मुंतखब किया ताकि जहाज को दीगर ट्रैफिक में ज्यादा आसानी से शिनाख्त किया जा सके। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस के प्रिंसिपल रिसर्च साइंसदान जोनाथन भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जहाज का रास्ता इस बात की निशानदही कर सकता है कि इलाके में बारूदी सुरंगें हैं, या ईरान ये तासुर देना चाहता है कि ये बारूदी सुरंगें मौजूद हैं ताकि ये एक रोकथाम या खौफ कायम करे। इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात के रांदेर की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को एक खंबा मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि इसका बेशतर वजन एक स्तून पर टिका है। लेकिन 125 साल से ज्यादा पुरानी इस मस्जिद की खूबसूरती उसके तर्ज तामीर और उसके बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बने टैंक्स में भी मुज़मिर है। मजीद तफसील अजीत गढ़ोही से। इंडियन रियासत गुजरात के रांदेर में मौजूद ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिससे ज़्यादातर लोग एक खंबा मस्जिद के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा एक ही खंबे पर टिका है। इसमें पुराने लोगों ने इसे एक पिलर ऐसे बनाया है जो आर्चीज और एक कनेक्ट कॉलम करके उस पे लोड को रेस्ट किया गया है। मस्जिद में 4 की जगह 3 मीनारें ही हैं जो कि 50-50 फीट बुलंद हैं। कोई 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये मस्जिद अपनी खूबसूरती, कारीगरी और मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से मशहूर है। इसकी खासियत इसके नाम से जो है एक खंबा मस्जिद, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट है जिस पे इसका पूरा भार टिका हुआ है वो एक सिंगल पिलर है जिसमें से 4 आर्चेस निकलते हैं और उसके ऊपर एक पूरा फ्लोर टिका हुआ है। इसमें 3 ही मीनार है। बताया जाता है कि 1850 में रांदेर के कुछ शहरियों ने एक पारसी खानदान से 5000 रुपए में मस्जिद के लिए ज़मीन खरीदी
और फिर मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ। उस ज़माने में जो धनिक लोग थे, जो पैसे आए, उसमें इन लोगों ने पहले ज़मीन खरीदी, फिर अपने इलाके के जितने जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे उनसे बातचीत करके थोड़ा बहुत चंदा हो लिया, खुद अपने से जोड़ा और फिर उन्होंने ये मस्जिद की तामीर की है। 1920 में रांदेर के मारूफ ताजिरों ने मस्जिद के रेस्टोरेशन का मंसूबा बनाया, लेकिन इसके तर्ज तामीर को बरकरार रखा। रांदेर एक ज़माने में सूरत के साथ गुजरात का एक बड़ा बिजनेस हब था। कहा जाता है कि रांदेर सूरत शहर से भी ज़्यादा पुराना है। ये मस्जिद न सिर्फ एक मजहबी मकाम है बल्कि मजबूत तारीखी और तिजारती विरासत की अलामत भी है। तो जो ये एक खब्बा मस्जिद है, 3-4 स्टाइल्स का आप देखने जाए तो एक मिक्सचर है। उसमें से एक है अरेबस्क, गार्डन ऑफ पैराडाइज जो काफ़ी होली माना जाता है इस्लाम में, उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन भी देखने मिलता है। थोड़ा बहुत गॉथिक भी देखने को मिलता है। जो वर्नैकुलर जिसको बोलते हैं पारंपरिक, वहीं से उद्भव हुआ, वैसा भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी था, जहाँ पे पोर्टुगीज है, ब्रिटिशर्स है, उनका भी इन्फ्लुएंस रहा था। एक खंबा मस्जिद को बनाने में लाइम स्टोन, लकड़ी, पत्थर, मार्बल और लोहे का इस्तेमाल हुआ है। मस्जिद का मिंबर भी अपनी नक्काशी की वजह से काबिल दीद है। एक खंबा मस्जिद की एक और ख़ास बात इसके बेसमेंट में पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए टैंक्स हैं। अब की गवर्नमेंट है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस कर रही है, जो बरसात के पानी का संग्रहालय हम जिसे कहते हैं, उस पे इन लोगों ने आज से 125 साल पहले सोचा था, जिसकी वजह से इसके तहखानों के अंदर 2 टंकियां बनाई गई है। वो तकरीबन 10 फुट हाइट से ऊपर की है और तकरीबन 45 या 60 फुट लंबी है। जो नमाज पढ़ने आने वाले लोग हैं, जो इसे वुज़ू में इस्तेमाल कर सके, उसके लिए उस पानी को संग्रह किया जाता है। एक खंबा मस्जिद के आसपास के इलाके में और भी कई खूबसूरत मसाजिद हैं, लेकिन एक खंबा मस्जिद नई नस्ल के लिए भी अहमियत रखती है। नई जनरेशन के लोग जब देखने आते हैं तो पहले इतने ह्यूज स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर को देख के पहले तो सोचते हैं कि भाई ये बनाया तो कैसे बनाया होगा, जो कार्विंग्स है तो कैसे बनाया होगा, तो उन्हें उसके लिए मोटिवेशन थोड़ा इससे मिलता है कि भाई हम आगे जाके समझो कोई आर्किटेक्ट का काम करते तो हम किसे इसमें फोकस करें। कहते हैं कि 125 साल पहले इस पर कोई 50-60 हज़ार रुपये का खर्च आया था, लेकिन अब इस तरह की इमारत की तामीर किसी ख्वाब से कम नहीं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कई अजला में सदियों से ख़ास किस्म के पत्थर तराश कर यहाँ के फ़न तामीर को 4 चांद लगाने वाले संग तराश सरकारी पाबंदियों की वजह से फाका कशी की दहलीज पर पहुँच गए हैं। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, जानिए रियाज मसरूर से। बैन होने के बाद हम डिप्रेशन के शिकार हो गए, हम मरीज़ बन गए, हम बैंक डिफ़ॉल्टर बन गए। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कानकनी पर सरकारी पाबंदी की वजह से संगतराशों की बड़ी आबादी आजकल मायूसी में मुब्तला है। मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, आई हैव नो वर्ड्स। मैं आपके कैमरा के सामने बोल सकता हूँ, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बांडीपोरा के सदरकूट बाला इलाके का यही वो पहाड़ है जहाँ से ख़ास किस्म का ये पत्थर, जिसे ग्रे स्टोन या कश्मीरी में देवर स्टोन कहते हैं, निकलता है। और यही पत्थर जो है सदियों से कश्मीर के फ़न तामीर और सकाफ़त की अलामत बना हुआ है। इस गांव की कई नस्लें संग तराशी ही करती आ रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरस से सरकारी पाबंदी की वजह से ये लोग पहाड़ों के दामन में कुदरती तौर पत्थर खिसकने का इंतज़ार करते हैं। हमारी लड़कियों की उम्र निकल रही है, हम उनकी शादी नहीं कर सकते। हम उम्र भर यही काम करते रहे हैं, जिस तरह हम पहले ये काम करते थे वैसे ही करने दिया जाए। पाबंदी से पहले जदीद तर्ज की मशीनें खरीदने वाले बाज नौजवान आजकल बुलंद पहाड़ियों से मोटरसाइकिल पर पत्थर ढोते नजर आते हैं। कि बाइक वाले कितने रिस्क लेते हैं, कहाँ से वो हमाम लेकर जाते हैं नीचे पत्थर, कितने मतलब कौन करेगा ऐसा जिसके पास कुछ नहीं होगा खाने के लिए। इन संगतराशों में ऐसे फनकार भी हैं जो पत्थरों से घरेलू आराइश की खूबसूरत चीजें भी बनाते हैं। सारा गांव इसी पे पल रहा है सर। हमारा अगर ये पत्थर का काम बंद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएगा पूरा गांव। हुकूमत ने पत्थरों में मैदनियात की शरह की कोई हद तो मुकर्रर नहीं की है, ताहम पाबंदी के बाद जारी सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि इन पत्थरों में मैदनियात की शरह 45% से भी कम है। यही वजह है इस शोबे से वाबस्ता लोग इस पाबंदी पर सवाल उठा रहे हैं।
अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू राजस्थान, अगर वहाँ पे मिनरल 72% है, 60% एबो है, दैट वो हाई ग्रेड स्टोन नहीं है। अगर हमारे पास 48-45% है, हम कैसे हाई ग्रेड हो गए हैं? हालांकि महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग ने पड़ोसी जिला गांदरबल में भी कानकनी पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन वहां मुतासिर संगतराशों को मुतबादिल पहाड़ पर कानकनी की इजाजत दी गई है। जहाँ पे भी बैन हुआ है, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इसके बारे में। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। जहाँ पे भी उन्हें लगेगा कि इट्स इजी टू लेट दिस गो, तो वहाँ पे उनको एक ग्रीन फ्लैग मिलेगा, वो चलेगी। और जहाँ पे भी लगेगा कि यहाँ पे है देयर इज वल्नरेबिलिटी कंसर्निंग द एनवायरमेंटल इशू, दैट माइट बी रिहेबिलिटेटेड। कश्मीर में संग तराशी खालिस कश्मीरी फन तामीर की खूबसूरत अलामत है। इस फन को यहाँ मुगलों ने मुतारिफ कराया था। श्रीनगर में कदीम मंदिरों, मस्जिदों, खानकाहों और इमाम बारगाहों में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। पुराने श्रीनगर शहर में 17वीं सदी में मुगल मलिका नूरजहां ने इन्हीं पहाड़ों से निकाले गए पत्थरों से एक मस्जिद तामीर की थी जो पत्थर मस्जिद कहलाती है। लेकिन सरकारी पाबंदी जारी रही तो ये फन तारीख का हिस्सा बन सकता है। दुनिया भर में नौजवान मर्दों के दरमियान लुक्स मैक्सिंग नामी रुझान तेजी से मकबूल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ज़ाहरी शक्ल और सूरत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे हैं। 26 साला मार्विन खुद को 10 में से 7 नंबर देते हैं और मजीद बेहतरी के लिए रोजाना जिम, स्किन केयर और चेहरे की मखसूस वर्जिशें करते हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ ये मामूल शेयर भी करते हैं। The most attractive man in the world, I would say that in terms of harmony percentage, it's like a very objective thing. This is not really based on like an opinion of mine. इस रुझान में सॉफ्ट मैक्सिंग जैसे महफूज तरीके शामिल हैं, जैसे वर्जिश और जिल्द की देखभाल, जबकि हार्ड मैक्सिंग में खतरनाक इक़दामात भी देखने में आ रहे हैं। मसलन चेहरे की हड्डियों पर ज़रबे लगाना या गैर मंजूर शुदा अद्वियात का इस्तेमाल करना। माहिरीन खबरदार करते हैं कि जहां ये रुझान खुद एतमादी में इजाफा कर सकता है, वहीं बाज़ सूरतों में ये नौजवानों को गैर हकीकी खूबसूरती के मयार और ज़हनी दबाव की तरफ भी ले जा सकता है। तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स इस रुझान को मजीद फ़रोग़ दे रहे हैं, जिससे नौजवानों में ये एहसास बढ़ रहा है कि बेहतर नज़र आना ही कामयाबी की कुंजी है। माहिरीन का कहना है कि तवाज़न बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि हद से बढ़कर ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे दौड़ना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज कहा है कि वो ईरान से जंग की वजह से मार्च के आखिर में होने वाले अपने अहम दौरा चीन को तकरीबन 1 माह के लिए मुअख्खर करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सादा सी बात है कि जंग जारी है और मेरे ख्याल में मेरा यहाँ रहना जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात जोर देकर कही कि इसमें कोई चाल नहीं और वो सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए पुरजोश है। ये पेशरफ्त ट्रंप की बरतानिया के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू के एक दिन बाद सामने आई है। अमेरिकी सदर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि अगर चीन ने खलीजी तवानाई की तरसील के लिए अहम गुजरगाह आबनाए हुर्मुज को खोलने में मदद न की तो वो मुलाकात को मनसूख कर सकते हैं। ट्रंप के ये बयानात उस वक्त सामने आए हैं जब ईरान जंग के बाद दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। बीजिंग ईरान का तवानाई का बड़ा खरीदार है और इसने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की तनकीद की है। चीन की जानिब से ऐलान किया गया है कि 3 हफ्तों से मशरक़ के वुस्ता में जारी जंग के दौरान वो खिते के ममालिक को इंसानी इमदाद फराहम करेगा। BBC अरबी के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन चियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन ने ईरान, उर्दन, लबनान और इराक को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि इससे इन ममालिक के अवाम को दरपेश इंसानी मसाइब को कम करने में मदद मिलेगी। काबुल में फ्रांसिक लेबॉर्ट्री के ज़राए ने BBC को बताया कि शहर में मनशियात के आदी अफराद की बहाली मरकज़ पर होने वाले एक फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा है कि इस मरकज़ को पीर की शाम निशाना बनाया गया और तालिबान हुकूमत का दावा है कि यह फ़िज़ाई हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। तहम पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से पीर की शाम किए गए फ़िज़ाई हमले में काबुल और मशरक़ की अफ़गान सूबे नंगरहार में फौजी तनसीबात और दहशत गर्दों के मराकज़ को निशाना बनाया गया था।